Dear students, Assalamu alaikum and welcome to all the students in the Right Way Academy. Students, आज हम डिस्कस करेंगे गैस पेपर्स फिजिक्स के फर्स्ट ईयर क्लास according to all chapters one by one. First of all, we start chapter number 1, unit 1. Question 1 is differentiate between precision and accuracy. Question 2 है what do you know about the dimension analysis. आप डायमेंशन एनालिसिस के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे. क्वेश्चन 3 है राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स. इसमें आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन और फोर्स की डायमेंशंस राइट करेंगे. क्वेश्चन 4 है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी. तो डायमेंशंस आपको फाइंड करने आनी चाहिए हर यूनिट की. Question 5 है does the dimensional analysis give any information on constant of proportionality that may appear in an algebraic expression? Explain. Question 6 है show the famous Einstein's equation E is equals to mc square is dimensionally consistent. Question 7 है what are the dimensions and units of gravitational constant G in the formula F is equals to gm1 m2 over r square. Unit 2, question number 1. Is it possible to add a vector quantity or to a scalar quantity? क्या ये possible है कि हम vector quantity को add कर सकते हैं scalar quantity में? इसके आपने statement देनी है, statement को justify करना है. Question 2 है can you add 0 to a null vector? क्या आप null vector में 0 add कर सकते हैं या नहीं, तो आपने इसका आंसर देना है. Question 3 has suppose the sides of a closed polygon represent vector arranged head to tail. What is the sum of these vectors? Question 4 है how would the two vectors of same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to a vector of same magnitude? Question 5 has shown that the sum and the difference of two perpendicular vectors of equal lengths are also perpendicular and the same length. Question 6. If all the components of the vectors a1 and a2 were reversed, how would these alter a1 x a2? Question 7 है define the terms unit vector, resultant vector, null vector, equal vectors, position vector, components of a vector. इन terms को आपने define करना है, just कोई भी अदर इनके बारे में चीज़ नहीं लिखनी. Question 8 है define torque and what is its formula. Next unit number 2 के long question आ जाते हैं. Question 1 describe vector addition by rectangular components. Question 2 define scalar or dot product, describe its characteristics. Question 3 है define vector or cross product, define or describe its characteristics. यूनिट नंबर 3 है इसके शॉर्ट क्वेश्चन. डिफाइन द टर्म इम्पल्स, डिफरेंशिएट अमंग द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक प्लेन. क्वेश्चन 3 है डिस्क्राइब द रॉकेट पल्पेशंस, अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्वेश्चन 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. नेक्स्ट इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 13, 3.14. यूनिट नंबर 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. स्टूडेंट शोज दैट 1 k WH is equals 3.6 m joule. Describe, state and explain the law of conservation of energy. Explain the short questions from the exercise 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9. These are very important short questions from the examination point of view. तो students आपने इनको अच्छे से prepare करना है और learn करना है. Long questions आ जाते हैं इसके. Question 3 है state the work energy principle, also derive its mathematical form. Question 4 है describe the interconversion of potential energy and kinetic energy for a free falling object. यूनिट नंबर 5 इसके शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन 2 है डिफाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन. क्वेश्चन 5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन और अमंग द रियल एंड अपेरेंट वेट. इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट हैं वो हैं. क्वेश्चन
5.2, 5.3, 5.4, 5, 7, 9, 10 and 11. Numericals 5.2, 5, 6 and 7. Unit number 6, describe or state the Stokes law. Question 2 है write a note on terminal velocity of the object when it moves through a fluid. एक्सरसाइज से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.1, 2, 3, 4, 8, 9 and 10. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी state Bernoulli's relation for a liquid in motion and describe some of its application. Students chapter number 6 very important. इसमें 2 ही लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं Bernoulli's equation and continuity equation. Question number 1 है from the chapter number 7. Name the 2 characteristics of simple harmonic motion. Define the term resonance. Describe some common phenomena in which resonance plays an important role. इसमें आपने वो वाले फिनोमेनाज लिखने हैं जो रेजोनेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डिफ्रेंशिएट अमंग फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन. इसमें स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं. और न्यूमेरिकल्स इसके साथ एग्जाम्पल 7.2 भी आपने प्रिपेयर करनी है, वो भी सम टाइम बोर्ड में सिलेक्टेड है. नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 आ जाता है हमारे पास. इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट पीरियोडिक वेव्स. क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स. क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस इन क्रस्ट एंड ट्रॉप्स. लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसके यूनिट के. व्हाट डू यू नो अबाउट द बीट्स फिनोमेना. Also describe its application. What are stationary waves? Describe the main characteristics of stationary waves. Question 3 है how the stationary waves are produced in stressed strings. Shows that the frequencies of stationary waves in stressed strings are quantized. इसके जो numerical important है वो 8.3 and 8.6 हैं. यूनिट नंबर 9 है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ द न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड. Question 8 है what do you know about the diffraction of light. Also describe some examples of diffraction of light. Question number 9 है what do you know about diffraction grating. Question 10 है define the term grating elements. Next इसके numericals जो important हैं 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 and 7. Unit 10 है हमारे पास. नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्वेश्चन 2 है डिफाइन द टर्म क्रिटिकल एंगल. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द स्नेल्स लॉ. न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट 10.3, 10.8, 10.9. ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यूज़. और न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं. नेक्स्ट है यूनिट 10 के लॉन्ग क्वेश्चन डिराइव द फार्मूला फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. क्वेश्चन 2 डिराइव द फार्मूला फॉर द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू नो अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ फ्री डायग्राम. इसमें आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बताना है क्या होती है ये, और इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, इसकी वर्किंग बतानी है. इसके साथ साथ आपने डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 11. इसके शॉर्ट क्वेश्चंस व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द टर्म इंटरनल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंड क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू नो अबाउट इन एडियाबैटिक प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस. क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट अमंग द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स state second law of thermodynamics. Question number 8 है what do you know about the Carnot engine. Question number 9 है state the Carnot theorem. इसके important short questions और numericals हैं 11.1, 11.3, 4, 7, 8 and 11. Next
स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं वो आपको मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास एमसीक्यूज पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जो 12 आएंगे आपने 8 करने होंगे। यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 7 इस पोर्शन में चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। चैप्टर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो अटैम्प्ट हो और टोटल आप 8 अटैम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके जो चैप्टर्स इस पोर्शन में इंक्लूडेड होंगे वो होंगे यूनिट नंबर 4, 5 एंड 8। इसमें से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिट नंबर 9, 10, 11। इस पोर्शन में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इन चैप्टर्स में से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आप स्टूडेंट्स अगर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अपने पेपर को प्रिपेयर करते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि हम कितना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि आप फिज़िक्स कैसे अच्छे मार्क्स में गेन करेंगे। इसके मार्क्स गेन करना आसान है अगर आप पेपर को डिवाइड करते हैं अपने पोर्शंस में। तो उस के अकॉर्डिंग आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकें। तो आपको जब पता चल जाएगा कि इस पोर्शन में आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इन चैप्टर्स में से सिलेक्ट किए जाएंगे, तो आप उस पोर्शंस को उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है तो आप अपने फेवरेट चैप्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रिपरेशन करते हैं। इसके बरक्स अगर आप पूरे चैप्टर्स पूरी बुक के चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर आप सिलेक्टिव पेपर्स अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स कर सकते हैं गेन। स्मार्ट वर्किंग ज़्यादा जो है वो मार्क्स ले जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके यूनिट नंबर 2 और 3 इंक्लूड होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आया इसमें जो यूनिट नंबर 2 है, हो सकता है इसमें से न्यूमेरिकल आ जाए या थ्योरी पोर्शन आ जाए। 3 में से हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या थ्योरी में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो ये चीज़ कंफर्म नहीं होती, इसलिए हर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 2 चैप्टर्स के पेयर होंगे। वो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है कि वो पेपर बनाने वाले की मर्ज़ी है कि वो किस तरह का जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से लेता है, उसमें से उसकी क्या चॉइस है कि अगर वो चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल ले रहा है या थ्योरी पोर्शन ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है यूनिट नंबर 4 एंड 5 इसमें इंक्लूडेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट नंबर 6 एंड 7 इंक्लूडेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिट नंबर 8 और 9 इंक्लूडेड होंगे इसमें। और लास्ट वन आपके पास जो क्वेश्चन होगा इसमें आपके यूनिट होंगे 10 एंड 11। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। Okay, thank you and Allah Hafiz, and share with it all your friends.